Hello everyone, welcome to the fresh videocast episode of Cozy Conversations and मैं आज की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट काफ़ी टाइम से एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे ये कॉन्वर्सेशन करनी थी. बिकॉज लाइक अब क्या हुआ, लाइक लास्ट मंथ आई टर्न 25 and then the moment I turned 25 there was like a lot of questions ki now when are you getting married, when are you have to get married, you're next, this and that, and it made me really anxious. For some reason this birthday I was feeling really anxious ki like okay, like now I've become an adult, मुझे शादी करनी पड़ेगी and all of this. And फिर अभी ऐसा हो रखा है that when I look at relationships and when I look at marriages around me, sometimes the situation is like really sad. Like इतनी जल्दी marriages टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो फिर लगता है कि क्या फ़ायदा मैरिज करके, like क्या करना ये ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन हो गया था. एंड फिर ये सब सिचुएशन में आप नोटिस कि यूजुअली एक जनरेशन गैप हो जाती है बिकॉज people who are elder to us feel कि नहीं, this is the right time to get married, if you find the right person there's no harm in getting married, ऐसा thoughts and perspectives आते हैं. Whereas हमारी जनरेशन के लोगों को लगता है कि no, let's just be cool about it, why is the marriage needed, अभी तो hookup culture चल रहा है. I was like, let's talk about this, and let's talk about this with people from two different generations ताकि somebody more experienced could share their experiences in a marriage, their opinions about how a marriage can work, and somebody unlike me can share where my fears and मेरे को क्यों डर लगता है शादियों से. I can share my fears and my anxieties and things like that, and this is the reason I'm doing this video. So thank you so much Archana auntie for coming to this video and for like the experiences that you'll be sharing with us. Thank you so much, Mahima. Even this happens to be one of my favorite topics. Relationships, marriages, though now I think even I fail to understand the dynamics of marriage, why they work, why they fail. First and foremost, I really need to tell people why do we think this institution of marriage should have started. I think it all started so that there could be more sanctity in the society. It could be a more organized society, a more civilized society. I think that is why it must have started. Now the biggest question, just before the interview you said, what is the right age for marriage? Now this is actually $1 million question. कौन बता सकता है what is the real age for marriage? तुम बताओ. What is the right age for marriage? Auntie, मैं तो बहुत confused feel करती हूँ because once like everybody tells me कि okay 25 is the right age, and फिर logic क्या होता है is that तुम अभी flexible भी रहोगे तो तुम किसी नए family में जाके adjust कर पाओगे, which gives you like a lot of time. फिर बाद में बच्चा प्लान करने easy होगा, that's why you should get married at 25. And another reason why you should get married at 25 is that बाद में जैसे जितना जितना एज होता जाएगा उतना मेन का पूल कम होता जाएगा. अभी adequate रिश्ते आ रहे हैं तो अभी कर लेना चाहिए. More fish to choose from. Well, the actual, देखो, I am extremely confused in this. Now I'm looking back. मेरी mom, she got married 14. Was that the right age? She settled in very well. She had, and कभी-कभी लगता है कि at 36 her daughter got married. And you know, and at 70 her grandchildren are getting married. So एक हिसाब से, but then it wasn't right क्योंकि उनका बचपन तो खत्म हो गया ना, उनको ना वो strong enough थी to bring up children. It just happened, you know. ठीक है, but there are so many women who died in childbirth with such an oppressed, suppressed life. So I think that was very, very wrong. Then came another generation. उनसे 15-20 साल बाद, 10-15-20 साल बाद शादियाँ होने लगी 18-19 की उम्र में. वो भी मुझे लगता है कि that wasn't right enough क्योंकि एजुकेशन बीच में रह जाती थी ना, उतनी मेच्योरिटी आती थी एक नए घर, एक नए माहौल में सेट होने ना. सो आई थिंक even that was slightly early. Then came our generation, our time, जब हमारे 20-21 साल में शादियाँ हो रही थी. Even today, 36 years after marriage, और दुनिया इतनी बदल गई, everything is changed. आपको लगता है नहीं उसी दुनिया में रह रहे हैं. Things have so changed, especially on relationship front. टेक्नोलॉजी वगैरह बदल गया, दैट्स फाइन. जो सबसे ज़्यादा बदला है वो रिलेशनशिप के डायनामिक्स. तो उसमें मुझे लगता है हमारा वक्त, मुझे आज भी लगता है राइट टाइम था. We had enough time to finish our basic education. We were ready physically, mentally, emotionally to adjust into another family. Flexible भी थे, at the same time strong भी हो गए. And according to science and research, सोचो एक टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था 18 साल इज द राइट एज फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज. चलिए 21 फॉर गर्ल्स एंड 25 फॉर बॉयज आई थिंक इज द राइट एज. आई वुड थिंक, स्टिल थिंक, बिकॉज यू नो
your physical, your emotional, your mental, your social needs at the peak at that time. So, and a marriage gives you so much of anchoring and so much stabilizing. But आज के दिन, today, in today's context, I don't know if 21 is right or 25 is right or 29 is right. आज जो तरीका हो रहा है संसार का, जो सोशल फैब्रिक इतना वीक हो गया है, मुझे लगता है जब लड़का और लड़की तैयार हो, that is the right age. The age is absolutely of no consequence. Age का मेरे हिसाब से, मेरे जितने old fashion, old school of thought की हूँ मैं, मुझे भी लगता है age should not even be considered. You have to understand, are you ready for this big responsibility? Only then take a plunge. तो आंटी जो आपने बोला ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट आते हैं रिलेशनशिप्स के साथ, तो उस चीज़ से क्या होता है, जैसे हम लोग की जनरेशन वालों को काफ़ी डर लगता है कि अच्छा देयर इज नो रिवर्स ना इन मैरिज, लाइक यू गेट इनटू इट एंड देन यू हैव टू लाइक लाइफ टाइम, अब मुझे इसी इंसान के साथ निभानी है या मुझे इसी फैमिली के साथ निभानी है, एंड दैट लाइक मेक्स मी गेट वेरी स्केयर्ड कि चलो हाउ कैसे निभाया जाए रिश्तों को. सो माय क्वेश्चन, कमिटमेंट तो जिंदगी में कुछ भी करोगे तो बगैर कमिटमेंट को कर ही नहीं सकते. मान लो कोई डॉक्टर बन रहा है, बचपन से तैयारी कर रहा है, वो 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं. यू प्रिपेयर फॉर दैट बिग थिंग. आप इतनी सारी तैयारी करते हैं, सबसे पहले तैयारी करते हैं, उसमें घुसते ही बिकम अ डॉक्टर. मे बी 7 years आफ्टर दैट यू फील इट्स नॉट अ गुड इनफ प्रोफेशन. हमेशा आप इंजॉय नहीं कर रहे होते, हमेशा इट्स नॉट एन इजी राइड, बट येट यू आर कमिटेड. यू आर स्टिल कमिटेड. कमिटमेंट के बगैर तो कोई भी किसी चीज के साथ भी रिश्ता आपका फॉरएवर नहीं हो सकता है. एंड अंटिल अ रिलेशनशिप लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल नेवर गिव यू गुड फ्रूट्स, गुड रिजल्ट्स. सो कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप, और वो सबसे ज्यादा वीक होता जा रहा है. आई डोंट नो व्हाई चिल्ड्रन आर बीइंग सो कमिटमेंट फोबिया. वैसे भी शादी हो चाहे, आई मीन मैरिजेस आर नॉट सपोज्ड टू बी लाइक अ बेड ऑफ रोजेस. I fail to understand what are the expectations children come with when they start this partnership. It's like a partnership, a lifelong partnership. What are the three basic rules of a partnership? For a lifelong, smooth sailing partnership, first होता है compartmentalize. क्या है compartmentalize? That your responsibilities and your duties have to be in compartments. अगर दो पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, one looks after the finance and probably the marketing, one looks after the HR and procurement. अगर दोनों एक दूसरे में मिक्स कर दे अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो वो बिजनेस चल पाएगा स्मूथली. सो द सेम गोज विथ मैरिज. We have our fixed duties, responsibilities that we have to kind of be committed to. The first is compartmentalize. Second is commitment. And commitment comes with the fact that you have to accept the person as a package. वो हो ही नहीं पा रहा है. You probably like the उसके biceps अच्छे लगे मगर उसकी मूछें नहीं है अच्छी लगी. You like the fact that he is very romantic but he doesn't have a sense of humor. So if you marry one person and you expect everything in that one person, is that practical? So you have to understand that you have to accept the person as a package. The third, of course, the third C is compromise, which goes for everything, every relationship in the world. It cannot be pulled until you believe in compromise. Compromise is a part of any relationship, any partnership. Do you agree? लाइक स्पेशली अब जैसे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ के केस में, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लॉट ऑफ माई टाइम विद माई फ्रेंड्स ना. सो इट्स द सेम वे, लाइक इवन इन अ मैरिज, लाइक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी. यू हैव टू डू इट. यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ लेटिंग गो ऑफ सर्टेन थिंग्स. लाइक हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती. That's true. If only youngsters, children would understand this, I think we will be so difficult. चिल्ड्रन वो कितनी आसानी से शादियां तोड़ रहे हैं, कितनी आसानी से. मेरे हिसाब से सिर्फ 3 रियल वजह हो सकती है शादी तोड़ने की. वन इज इम्पोर्टेंसी, यू नो, अगर नपुंसक हो. सेकंड आई थिंक वुड बी इनफिडेलिटी, कि शादी के बाद भी अगर कोई रिलेशनशिप में है, लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड आई थिंक इज फिजिकल अब्यूज.
अब कोई बिल्कुल ऐसे हाथ मरोड़ दिया, उसको फिजिकल अब्यूज बोल दिया, या कभी गुस्से में कुछ बोल दिया, उसको टॉर्चर बोल दिया, मेंटल टॉर्चर। When I talk about these three things, इसके अलावा जो भी है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। बट जिन वजह से लड़कियां आजकल घर छोड़ के जा रही है या बच्चे रिश्ते तोड़ रहे, इट्स वेरी वेरी सैड एंड इट्स वेरी वेरी स्कैरी। क्या होगा समाज का ढांचा? हर रिश्ता जो टूटता है समाज के ढांचे को थोड़ा सा और कमजोर कर देता है। अगर कोई एक रिश्ता टूटता है, सिर्फ वो परिवार या वो बच्चे नहीं सफर कर रहे, उसके आसपास वाले लोग भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं ना। शायद कोई रिश्ता टूट जाए एक छोटी सी बात पे। मैं अपने 36 साल की शादी के बाद भी मैं अपने अंदर झांकती हूँ, माय गॉड, इतनी सी बात पे मैंने रिश्ता तोड़ दिया। देखिए पागल थी, इससे कितना ही ज्यादा हमने निभाया। सो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर लाइफ। एंड जो बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई है, उनको डर लगने लगता है कि ओ माय गॉड, जिस तरह रिश्ते टूट रहे इतनी छोटी छोटी बातों में, दे बिकम सो फ्रेजाइल। उन्हीं शादियों से डर लगने लगता है। So everybody who gets married is a very very big responsibility, not only towards yourself but towards society also. So before you get married, make sure that you're prepared for the big change. It is a big change. A girl has to understand that she is very lucky to have both roots and wings. So you can, आप अपने सपने पूरे करते हुए अपने घर को संभाल सकते हैं। I always talk about Indra Miri. I always talk about her. She's on top of the corporate ladder, but she's so proud of the fact that she's an amazing cook and she's an amazing housewife. We आज देवी के दुर्गा के 8 हाथ हैं, विष्णु के तो 2 ही हैं, महादेव को 2 ही हाथों में देखा है। Because a woman can multitask and she has so many dimensions to her character. Why don't we strengthen each power that we have? We can become so. We can be a fantastic housewife. We can be we can bring about social change. We can reach for the stars. हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं. Business में समान. Only a woman can do that. So. मुझको आपसे क्वेश्चन पूछना था, like we are talking about like अभी एकदम divorce cases are on the rise, like a lot of engagements break and उसके कारण बहुत consequences भी खराब हो रहे हैं। जैसे like I've heard of people burning themselves like after their engagement and things like that, like after the engagement broke, या फिर divorce cases इतने बढ़ रहे, तो that also puts a fear कि okay life में ये क्या हो रहा है, पहले marriages बहुत टिकते थे अब नहीं टिकते, तो what do you think is the reason behind it? Actually we are living in an era of extreme confusion. हम बहुत confused हैं, हम किसी और को क्या समझें, हम खुद को नहीं समझ पा रहे। What we want from life, what are expectations from life, हम खुद भी नहीं जानते कि what is a perfect life, हम क्या उम्मीद करते हैं जिंदगी से। हमारी पता नहीं ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक तो ये हो रहा है। एंड फिर ना हम जब शुरू करते हैं कोई रिश्ता, कुछ भी करते हैं, निभाने के संकल्प के साथ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और इस उम्मीद के साथ कि हमारी ज़िंदगी, हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो, जो किसी भी किताब 300 पेज की किताब का जो लास्ट लाइन क्या है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो 300 पन्नों की किताब के बाद वो लाइन आई। पर आज हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो फर्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन यही हो। इज दैट पॉसिबल? जब हमारे फेरे होते हैं, एक इंडियन शादी, हिंदू मैरिज में जब फेरे होते हैं, वी आर टेकिंग दोस फेरास अराउंड फायर, कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे पत्थर के ऊपर पंडित जी एक दूसरे तीसरे फेरे के बाद पत्थर के ऊपर पांव रखवाते हैं। इसका मतलब हमारे बहुत सारे ऊंचे नीचे रास्ते होंगे, आग की दरिया भी होगी जिंदगी। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज वन वेरी वेरी मेजर रीजन, कंफ्यूजन एंड ओवर एक्सपेक्टेशन। सेकेंड, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि इंडिपेंडेंट होना इज बिकम, इट्स अ वेरी वेरी मिसअंडरस्टूड वर्ड नाउ। लड़का बोलता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ क्योंकि स्विगी और जोमैटो की वजह से उसको लगता है आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। लॉन्ड्री है, स्विगी जोमैटो है, अर्बन क्लैब से क्लीनिंग हो जाता है। सो दे थिंक इट्स डन। एंड वाइफ्स 1,50,000 लड़कियां कमाती हैं एंड दे थिंक दे इंडिपेंडेंट। It's such a misunderstood word. So, but in a marriage is definitely interdependence. It is definitely interdependence, जिसकी वजह से शादियाँ चलती थी। And आज ये जो है ये बहुत short term सोच रहे हैं, long term सोच नहीं पा रहे। One more major reason is I would understand is the over interference of parents. चाहे लड़के के पेरेंट्स हो, चाहे लड़की के पेरेंट्स हो,
they've grown up, especially लड़कियों के पेरेंट्स के साथ, I'm sorry to say, but let her settle down, let her उसको अपनी जड़ें जमाने दो, वो अपने आप अपनी जड़ें जमा लेगी. Until she has a really major issue, do not interfere. That's a different family. Let her grow, let her get used to that family. उसकी हवा अलग होगी, उसकी मिट्टी अलग होगी, तो let her settle down there. और लड़की में कैपेसिटी होती है, they are like the most beautiful plants God has made. कि जिस मिट्टी में डालो उसमें वो पलती है, पनपती है. So let her try her wings. Give her, she has that strength. वो एक है. And उसके बाद we have misplaced egos. बहुत ही misplaced egos है. उसकी वजह है छोटे परिवारों में बच्चे बड़े होते हैं. ना तो उन्हें गिविंग आता है, ना शेयरिंग आता है. जिस वजह से, and marriage is all about giving, forgiving, sharing. So उनकी परवरिश इतनी ज़्यादा परिवेश पे ध्यान दिया जाता, परवरिश पे कोई ध्यान नहीं. They send to the best schools, they give the best everything. पर जो बेसिक चीज़ें हैं इंसान होने की, sharing, caring, giving, forgiving, we fail to teach our children that. So I think these are the basic reasons why, unfortunately, this is become the face of marriage. एंड आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जनरेशन काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव भी होता है, जैसे बचपन से, बिकॉज आवर पेरेंट्स हैव वेरी लिमिटेड किड्स, तो समहाउ वी आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, बिकॉज फिर आपको लाइफ के चैलेंजेस के साथ डील करना नहीं आता है, बिकॉज लाइफ में तो इट्स नेवर गोइंग टू बी लाइक अ बेड ऑफ रोजेस. एंड आई थिंक विथ एनी रिलेशनशिप एंड विथ एनी मैरिज इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस कि सब कुछ एकदम ईजिली हो जाए, झगड़े ही नहीं होंगे, तकरार ही नहीं होंगी. It is going to be difficult, but it is about like you have to become resilient enough to face those challenges and obstacles. And when you're overprotected, and फिर थोड़ा सा भी issue आ जाए तो you're like, अच्छा now how do I deal with it? And then you're not taught to share. You're not taught to share. You're not taught to take challenges. You want everything in a platter. So which is not the right way to bring up your child. You will not be around. हवा parents हमेशा नहीं रहेंगे. What are you doing to your children? If you're not being able to teach them the way to have a solid, smooth relationship, आप क्या छोड़ के जाने वाले उनके लिए? कैसी दुनिया में छोड़ के जाएंगे? कितना अकेला छोड़ के जाएंगे? आज आप ले आइए, अपने बच्चों को अलग कर दीजिए, ठीक है? कब तक? You have to give them anchors, and the anchor will be marriage, a good solid marriage. And Mahima, do you agree? नहीं, I agree with it. I think हमारी जनरेशन को, बिकॉज हम बहुत सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत बॉलीवुड मूवी से भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो परसेप्शन रहती है कि परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, लाइक मैरिजेस शुड बी हैप्पी. But the reality is that marriages will not always be happy. There will be ups and downs. Just like when I started working, of course there were days when I felt really nice about the work that I was doing. But ups and downs होते थे. कभी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी. कभी ऐसा लगता था कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ. आज हमें कोई ना फिर तो क्या रहे. I think the same thing with marriages. ना ups and downs तो होंगे. और खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, जितना अपना हार्ट एंड सोल आज की जनरेशन अपने करियर को देता है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेडिंग प्रिपरेशन को देता है, अगर उससे एक छोटा सा पोर्शन शादी को दे देता ना, इट वुड वर्क. सी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू हैव टू गो थ्रू सो मच, देयर इज सो मेनी चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग एंड यू आर मैनेजिंग. जब आप अपनी ईगोज को क्रश कर देते हैं, आप एडजस्ट भी करते हैं, देन व्हाट विद मैरिज? Why don't you understand? अच्छा, corporate world में मैंने देखा है बच्चे देखिए switching jobs, और if they are in one particular job, they're always looking for a better opportunity. That is the difference. But in marriage, if you are in that relationship, make sure you make it work. And सबसे बड़ी problem क्या हो गई है ना? Because of social media and the cinema and Bollywood के impact की वजह से, it is not a social taboo, which is wrong. You know, उस वजह से भी शादियाँ टिक जाती हैं. उस वजह से भी हम रह जाते हैं, हम निभा लेते हैं कि दुनिया क्या कहेगी. अब तो पीपल विल से ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. घर घर में हो रहा है, घर घर में कोविड हो रहा था, क्या अच्छा था क्या? सो घर घर में हो रहा है इज नॉट अ गुड इनफ रीजन कि हमारे साथ भी हो. सो या दैट्स व्हाट आई थिंक महिमा, एंड आई थिंक यू शुड गो विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड. पर हाँ, ये चैप्टर इस दुनिया में पैर रखने से पहले
be very sure, be very determined to make it work. If you want to make it work, it will work beautifully. It's on you also कि आप उसको like काम करवाना चाहते हो या आप उसको क्विट कर देना चाहते हो, like कोई भी कुछ नहीं चला तो अच्छा आई क्विट. सो बिकॉज हमने इतनी बातें कर ली शादी के बारे में एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ मैरिज, मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आपके आई थिंक 36 ईयर्स ऑफ मैरिज हो गए. 36 ईयर्स ऑफ मैरिज से अगर आपको एक रिलेशनशिप एडवाइस देनी आज के जनरेशन के लिए, लाइक अच्छा हाउ टू वी इंश्योर दैट हमारे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाए, आप क्या एडवाइस देंगे? एक मिनट, दो चीजें, ओके. वन, just be giving and forgiving. Just be a giver and forgiver. Second is accept the person as a package. Love me, love my dog, love my ugliness, love my tantrums, love me absolutely as I am. So no person is perfect, no relationship is going to be perfect. It's you who can make it perfect and you can make it work. So yeah. So I hope like होते ना ये वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प हुई होगी. स्पेशली मुझे काफ़ी हेल्प हुई बिकॉज एज आई सेड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी आफ्टर माई 25th बर्थडे बिकॉज एवरीबॉडी लाइक शादी करें. लाइक अच्छा मतलब अब मैं ये एज की हो चुकी हूँ. लाइक होते ना पहले सब पूछते कौन से क्लास में पढ़ती हूँ बेटा, अब सब एकदम अचानक से आके लेके शादी करो. सो इट वाज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन माई हेड एंड मुझे लगा कि ये कॉन्वर्सेशन करना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज आई बिलीव दैट बहुत women from my generation, both men from my generation must be having the same questions. So thank you so much auntie for your time and I hope so कि हम ये advices को अपनी life में implement करके better relationships create कर सकें जो long term तक चले. That is my hope for myself and for everybody around. So thank you everybody for watching this video. अगर आपको कोई भी recommendations हो कि अच्छा इस topic में video बनाओ then please let me know. I'll definitely give it a try. Thank you auntie again. Thank you Mahima for having me.